chapter number 2, which is factors and multiples. And the 2 learning objectives only in this chapter. And this is 2-week chapter. Why it is 2 week? Because the content is more. Okay. So we are going to do what we are going to do. We are going to find HCF and LCM of 2 or more numbers. Okay. And we are going to learn how to solve word problems related to HCF and LCM. So can you recall from the previous class that what does this word mean? HCF. What does this highest common factor stands for? Highest common factor. ठीक है? So HCF is highest common factor. ठीक है? and LCM is lowest common multiple. Very good. So lowest common multiple. Acha, but there is one thing you need to remember, that although HCF is highest, लेकिन HCF is smaller than the numbers. ठीक है? Yes. Although there is a word highest, but because it is a factor, and you know that factors cannot be bigger than the number. Okay, so although it is highest, but this word should not confuse you. Like for example, if you are finding HCF of 24 and 44, so the HCF cannot be bigger than 44. Okay, or 24. Okay, so although it is highest common, but because it is a factor, so factors उस number से बड़े नहीं हो सकते, or it's a common one, so it means the HCF should be smaller than 24. ठीक है? Yeah, it can be equal, ज़्यादा से ज़्यादा. But LCM is, although the word is lowest, इससे फील ये आता है कि शायद ये छोटा नंबर है, लेकिन it because it is a multiple, और आपको पता है multiple किसी भी नंबर के the first multiple is the number itself, और उसके बाद multiples बड़े होते जाते हैं, तो इसलिए lowest common multiple will be either 44 or more than that. ठीक है? So अगर आप इन दो numbers का HCF निकालते हैं, तो HCF would be smaller than the smaller number or equal to that. ठीक है? And LCM would be bigger or equal to the bigger number. I hope this point is clear. Is it? Yes. Is it clear? So Yes, yes, very good. So we will still hold on to the prime factorization, and we will start with the easy questions. आज हम word problems नहीं करेंगे. We will solve mathematical questions most of the time. ठीक है? So let's look at this question. Find the highest common factor and least common multiple of the following pairs of number. So we are going to use prime factorization for that. So maybe I will do it on a whiteboard because the space is less. 676 and 650. So I'm opening the whiteboard. So recall the divisibility rule of prime numbers because we need to use those. So first is that we are going to write 676 and 650. 676 and 650. We are going to find out HCF and LCM. So what would be the first step? First step is that we need to do prime factorization. We need to write down these two numbers in form of their prime factors, right? So we will do prime factorization for HCF and LCM. So with which number I can divide? Which prime number? I can divide with 2, right? Yes. So what is half of 676? Abrish, what is half of 676? Ma'am, 333. 338. ठीक है? 338 नहीं, यहाँ से एक रिमाइंडर था ना, it was 16. ठीक है? So we will divide with 2 again. Now what is half of 338? आपने इसको कैसे डिवाइड करना है? 2 ones are 2, 1 remainder है, तो this is 13. 2 6 are 12, and then it is 18. So 2 9s are 18. And 9. Right? So 169 को Now देखिए 3. आपको 169 is a square number. किसका square number है 169? Ma'am, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है. 13. 13 का square है. Very good. So 13 into 13 is 169, and 13 ones are 13. So now let's do the prime factorization of 650. So 650 is also even number, so we will divide it with 2. What is half of 650? 325, right? So now we can divide it with, can we divide it with 3? What is the sum? 3 and 2, 5, and 5 and 5, 10. So हम इसको 3 से divide नहीं कर सकते. We will divide it with 5. 6 5s are 30 and 5 5s are 25. वही अगर 5 से divide करें 65 को तो क्या आंसर आता है? 13. 13. And then we will divide it with 13. ठीक है? So now we are going to write it down 676a in the form of prime factors 2 into 2 into 13 into 13. ठीक है? And if we write down 650 in form of its prime factors, so it is 2 cross 5 cross 5 cross 13. So now HCF is the common factor. HCF क्या होता है? The common factor. So what are the common factors? What are the common factors?
This 2 is a Ma'am, common factor 2 and and 13. 13 is a common factor. तो ये दो आपके common factors हैं, ठीक है? So we are going to write down HCF is 2 and 32 multiplied by 13. और कोई common factor नहीं है. So HCF is 26. ठीक है? So HCF is 26 and that makes sense because अभी मैंने आपको बताया कि HCF हमेशा smaller number से छोटा होना चाहिए. कुछ केसेस में उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है? Now let's look at what is LCM. अब देखिए LCM जो होता है वो आपका कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर होता है. कॉमन फैक्टर्स कम वंस एंड द नॉन कॉमन फैक्टर्स आल्सो कम. अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास 2 into 13. ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं, ये एक दफा आएंगे. और आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं. नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? बाकी के जो नंबर्स हैं 2 into 5 into 5 into 13, ये आपके सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं. ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करने से आई नो इट इज 26. इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? देखिए 5 2s are 10, 10 5s are 50 और 50 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 650. ठीक है? सो इसका आंसर आता है आपके पास 650. यू नीड टू मल्टीप्लाई देम वेरी केयरफुली. नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई 65 and 26. ठीक है? आई एम स्किपिंग दिस जीरो बिकॉज आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इफ देयर आर जीरोस तो यू कैन इग्नोर देम फॉर सम टाइम. ठीक है? मल्टीप्लाई द नंबर्स ओनली. सो 6 5s are 33, 6 6 are 36, तो ये 39 आ जाता है. डबल ऑफ 65 इज 130. ठीक है? तो आपके पास क्या आंसर आता है? 0 9 6 and 1. 1600 1690 is the LCM of these two numbers. So बेटे any question, anything you cannot understand, tell me now. No, ma'am. Understand. All right, it's clear. So what are the steps we need to follow? We need to do the prime factorization, then we will list down all the prime factors like I did in here. Okay, then we will see the common factors. What are the common factors? We will call that HCF of these two numbers. Okay, and then we will say LCM is common factor into non-common factor. So the common factors will come once and the non-common factors will also be coming in LCM. ठीक है? और आपने ये hint याद रखना है कि HCF cannot be bigger than the smaller number and LCM cannot be smaller than the bigger number. ठीक है? So this is the first part. अच्छा, so now what about these two questions? Can you do it as a home task or do you want to do together? We have Ma'am, done home first task. home task में कर लेते हैं because ये आसान है ना, तो हम कुछ book के question में. This I will share it as a like to you. Let me write it down यहाँ पर ताकि आपको बाद में confusion ना हो कि these two are homework questions. This also, and 3 more also. Let me show you which 3. ठीक है? I will share the picture. In the second worksheet, we are also having these numbers. ठीक है? और अभी कहीं पे भी 3 numbers नहीं है. So ये 5 questions आज का home task है. ठीक है? ये homework के questions हैं आपके. ठीक है? So now we will move on to the book questions because book के questions ज़्यादातर आपके पास tricky होते हैं. So book के questions देख लेते हैं कि कौन से question है. आज हम word problems नहीं करेंगे. word problems हम कल start करेंगे. अच्छा, now let's look at the questions from book. This is also from NSM1, 8th edition. It is chapter 1 in front of you. देखें काफी सारे questions हैं इसलिए this is 2 weeks topic. So chapter 1, 1C में 1 2 and 8. 1C में ही सारे हैं I think so. 1C. ठीक है? So I'm opening exercise 1C. Let's look at the questions. I have opened the book also. इससे पहले हम कौन सी exercise कर रहे थे? 1B कर रहे थे. So now we will do 1C. अच्छा, इस HCF और LCM निकालने का एक और तरीका ये होता है कि you can divide them together, right? So, all right. So we need to do which questions? Let me mark those questions. हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जी? हमने करने हैं 1 to 8 3 4 9. 1 1 to 8 3 4 9. 3 4 8 and 9. ठीक है? 8 and 9. और आगे वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें तो आपने वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं 5 6 10. वर्ड प्रॉब्लम्स हम कल करेंगे, कलर ताकि याद रहे. ठीक है? 5 6 and 9. ये 5 6 and 9. Let me check if 7 करना है. ये 7 भी करना है.
ठीक है, 5 6 9, अच्छा इसमें 10 था, 9 ऑरेंज है, वर्ड प्रॉब्लम है, 10 भी है, एंड देन वी हैव 11 12 13 and 16, 11 12, this is a long exercise, 13 and 16 also, 13 and 16 are intermediate difficulty, ठीक है, ये दोनों भी करने। सो नाउ वी आर क्लियर कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं एक्सरसाइज के। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द नंबर। सो ये तो आसान है। अच्छा, नाउ लेट्स डू विद द सेकंड मेथड। लाइक एक मेथड तो ये है कि आप अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करें एंड देन यू कैन सॉल्व। एक मेथड ये है, लेट्स से आई एम पिकिंग दिस सी पार्ट 126 एंड 240। सो इसको कर लेते हैं दूसरे मेथड से। एक मेथड तो ये हो गया, एक और मेथड ये जो आपको आसान लगे, यू कैन फॉलो दैट। So we are going to find out HCF and LCM of 180 and 450. 180 and 450, right? So दूसरा मेथड ये होता है कि आपने मे बी जब प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी तो आपने देखा होगा वी कैन डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टू नंबर्स टुगेदर। आपने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन की होगी ना। इंस्टेड ऑफ डूइंग फैक्टराइजेशन सेपरेटली, यू कैन डू फैक्टराइजेशन टुगेदर। आर यू फेमिलियर विद दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हम दो या तीन नंबर्स Yes. एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो दिस इज मोर क्विकर मेथड, लेकिन आपको फिर सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ता है। सो इसमें आप दोनों ऐसे डिवाइजर्स ढूंढते हैं जो दोनों को डिवाइड करें। अब बोथ आर प्राइम नंबर, बोथ आर इवन नंबर, सो आई कैन डिवाइड बोथ विद 2। सो 2 9s are 18 90 and 2 is 2 2s are 4 225। ठीक है, अब although I can divide 90 with 2, but because 225 is not divisible with 2, so I can divide with any other number, not with 2। दोनों डिवाइड होने चाहिए। So Ma'am, can you guys tell me? 3 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं बिल्कुल। 3 3s are 9 30 and 3 7s are 21, 3 5s are 15। So now what? मोहित आप भी बेटे आंसर किया करें। आप किस नंबर से डिवाइड करूं? 30 ma'am, and again with 3. 75। अगेन विथ 3। सो 3 10s are 30, 3 2s are 6, 3 5s are 15। आप किससे डिवाइड करूं? 5. With 5। 5 2s are 10, 5 5s are 25। Can I divide any more? Is No. there a common factor? No, no, there is none। ठीक है, अब आप देखें, we are done with prime factorization, और now you can say कि these are the common factors। ये सारे इसके common factors हैं, और ये जो दो यहाँ पर बच गए हैं ये क्या हैं? आपके non common factors, right? So this is more effective way। So HCF तो वैसे ही आपका common factor होता है, तो इसका HCF क्या आएगा? 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है, सो ये इसका HCF आ गया। अब आप देखें LCM क्या आएगा? LCM आएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो कॉमन फैक्टर तो वही हुआ जो HCF है, यानी 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 क्रॉस 5। ठीक है, अब मुझे ये बताएं इसको मल्टीप्लाई करके HCF क्या आता है इन दो नंबर्स का? अबरिश और अब्दुल मुईद क्या आंसर आते हैं Ma'am, बच्चे? HCF is 90. HCF is 90, right? So HCF is 90। Now let's look at the LCM। 90 into 5 2s are 10। LCM is 900, right? ऐसे ही है ना, LCM is Yes, 900। ma'am. अब देखिए आपने वही चीज यूज करनी है, वही लॉजिक वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। HCF is smaller than the biggest, oh sorry, HCF is smaller than the smaller number। So it's 90 and the smaller number is 180, so that makes sense। And LCM is bigger than the bigger number, so it's 450 is the bigger number and 900 is the LCM, that also make sense। ठीक है, so that is the, ठीक है बेटे। So any questions? No, ma'am, it is. It's easy, right? मोहित आपको भी बेटे बात समझ आ गई है ना? अच्छा, so do you want me to do any of these questions? So tomorrow is Friday now, so there would not be any class, so I can give you more task। ये दोनों questions आप बाकी Yes. homework में कर लेंगे बेटे? मोहित Yes. ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे ना? सिंपल है ना, नंबर्स का HCF LCM निकालना है, ऊपर लिखा हुआ है क्या निकालना है। ठीक है, so now let's do question number 2। now the word problem, this is a word problem and the trick comes now। it is find the largest whole number that is a factor of both। ओहो, ओके, पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। असल में ये क्वेश्चंस हमने कल भी किए थे, मतलब पिछले टॉपिक में भी, लेकिन दे आर कमिंग अगेन, और ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी होता है, लाजमी तौर पे 4 मार्क्स का हो, Ma'am, we 3 have मार्क्स का seen हो। them. यू हैव सीन देम ना?
आपने पहले इनको सॉल्व Ma'am, करें? I opened the past paper and I saw these questions. Yeah, that's right. She's ऐसा एक the क्वेश्चन 4 or पेपर 3 में, marks. हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने पिछले टॉपिक में क्वेश्चन किया है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k सच दैट 16k इज अ परफेक्ट क्यूब। एक्चुअली ये ज्यादातर पिछले टॉपिक के क्वेश्चंस लग रहे हैं इस टॉपिक से ज्यादा। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k सच दैट 16k इज परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। ठीक है, हमने k की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि 16 मल्टीप्लाई बाय k इज द परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हम वही करेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर क्योंकि ये क्यूब है तो हम तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे And और हम we देखेंगे, will divide it वी with विल 2. फाइंड, नहीं डिवाइड, हाँ जी वो तो डिवाइड, वेट बाय टू। ठीक है, हम फिर फैक्टर्स बनाएंगे और फिर हम देखेंगे क्या मिसिंग नंबर्स क्या हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी विल डिवाइड इट विद 2, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So now because it is a cube, so you will make a group of 3. So this is one group and this group is incomplete. ठीक है, so you will say 16 is equal to 2 cube into 2. Now this is 2 raised to power 1. आपको यहाँ पे 2 की पावर 3 चाहिए ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। So you will say k is equal to 2 की पावर 2. ये चीज आपको क्लियर है ना, कल भी हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, Yes, ये ma'am. चीज क्लियर है? ठीक है, you need to make all the powers equal to 3, so that's why the missing is 2 square. 2 square यहाँ पर अगर आ जाए तो आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, यहाँ पर अगर 2 की पावर 2 आ जाए। ठीक है, so this is the missing value. ठीक है, this is the value of k. ठीक है, so let's quickly solve all these, but you need to help me in solving. Let's say 525. तो 525 किसका स्क्वायर नंबर है या क्यूब नंबर है? 525 ये किससे 25. डिवाइड, 25 का स्क्वायर है। ठीक है, सो इसका मतलब यू नीड टू डिवाइड इट विद 5। इसका मतलब मुझे वैसे ही पता है कि 525 इज 5 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये 5 से 4 टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक है, 125, 125 5 का क्यूब होता है, तो 525 एंड देन 5 into 5, 5 1 जा 5। ठीक है, सो ये कुछ नंबर्स इतने फेमिलियर होते हैं कि आप उनको देखते ही आपको पता चल जाता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 525 is 5 cube, आई एम मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 3। व्हाई, बिकॉज इट्स अ क्यूब। अगर ये स्क्वायर होता तो फिर तो ये वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। अब व्हाट इज मिसिंग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? दिस इज फाइन, यहाँ पर 5 की 1 पावर है, तो इट शुड बी 5 क्यूब, तो हमें 5 की 2 पावर्स और चाहिए। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ k इज 25, राइट? Mohit and Abrish, any Yes, question ma'am. today? Anything you No, cannot yes, ma'am. understand? Is it clear? Yes. इसी तरह के क्वेश्चन कल भी हम कर रहे थे ना। ठीक है, बल्कि कल हम इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कर रहे थे। These are very easy, straightforward. अब देखिए 600 is not a cube number, so they are asking you what should be multiplied with 600 so that it becomes perfect cube. So what you will do, you will do prime factorization of 600, divide it with 2, ठीक है, 300, divide it with 2 again, so it will be 150. Now divide with 3. Now divide with, oh, I can still divide it with 2. So 275. Now divide it with 3. So 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now divide it with 5 and with 5 again. ठीक है, so this is the prime factorization of 600. 600 को हम लिख सकते हैं, because it's a cube number, we will try to write in powers of 3. So this is 2 cube into 3 की power 1 into 5 square. Now by looking at this prime factorization, what should be the value of k? Can you guys tell me? This is fine, right? So here, what is the missing power? 3 की क्या power होनी चाहिए? The power of 3 should be 2 and power of 2 and power of 5 should be 5 will be 1. 1. ठीक है, 2 is already there. So इन सबको क्यूब बनाना है तो हमें ये मिसिंग पावर्स चाहिए। ठीक है, so 3 3s are 9, 9 into 5 is 45. अगर आप 600 को So k is 45 equal से मल्टीप्लाई, 45. k is 45, इसका ये मतलब है कि अगर आप 600 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये क्या आता है, 0 0 तो आ जाएंगे, 6 5s are 30, 3 कैरी, 6 4s are 24 and this is 27. So can you guys tell me 27,000 का क्यूब रूट क्या होगा? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। 2700 किसका क्यूब है? 27 किसका क्यूब है? 3. 3 का। और ये 3 जीरोस हैं, जब क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो रह जाएगा, तो ये 30 का क्यूब है। Okay, ma'am. समझ आ रही? ठीक है, ये 3 zeros हैं because it is cube root, so these 3 zeros will turn into 1 zero.
जैसे हम 30 का क्यूब लेते हैं तो हम कहते हैं 3 का क्यूब इज 27 एंड 1 0 will be changed into 3 zeros because of the cube number. ठीक है, so this is the answer of K. मोहित बेटे ये बात समझ आ रही है? Right, very good. I'm skipping few questions because the numbers are very small. So let's do this question number F part. 693. 693. So first of all, we will do prime factorization. So with which number I can divide? 3. With 3. ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 2s are 6, 3 3s are 9. This I can still divide with 3. ठीक है, 3 7s are 21, 3 7s are 21. आप किससे डिवाइड करूं? किस प्राइम नंबर से? मोहित, with which prime number I can divide 77? 7. 7. And then lastly 11 से. 11. So 693 is basically, it can be written as prime factors as 3 square into 7 की power 1 into 11 की power 1. But we need to convert it into a cube number. यानी हमें 3 powers चाहिए. So what should be value of K? What are the missing 3. powers? 3 की power have the power of 1. 1. 7 की कितनी power Seven missing will है? have the power of 2 and 11 will also have the power of 2. So it's a big number. K is bigger than the original number. So 3 की 1 power is 3. इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा. 7 square is 49. 49. And 11 square is, Abdul Mueed, what is 11 square? 120. 121. Very good, 121. So now you need to multiply them. I'm multiplying 121 with 3 because ये आसान है. So 3 1s are 3, 2s are 6, 633. ठीक है, and then you need to multiply it with 49. So I'm using this space. 363 को आपने 49 से multiply करना है. Ma'am, the to total find out. answer is 17,787. All right. So this is the value of K. So Abrish, I'm changing the color. Can you tell me K, what is 693 multiply by, I want to see which cube number is this, 87. इसको 693 से multiply करें तो क्या आता है? Okay, ma'am. Just to recheck, 693 multiplied by 17,787. ये क्या आंसर आता है? Now we have to multiply it. जी बेटे. I And thought my you are answer using. is Are you using calculator? yes, ma'am. All right. So can you multiply these two and then take the square root, cube root? Multiply 177. Sorry, 17,787 with 693. Ma'am, 12,326,391. So 12 million 300 and 326,391. oh my, it's 8-digit long. So what would be the square root of this number? Cube root, sorry. Can you find out the cube root? Let me use the calculator on my so this is scientific calculator, so it is like cube root इसमें होगा ही नहीं. Oh my. ये cube root. Cube root of what? 1232. 1232. आगे क्या था? 6391. 6391. So this is 231. Can you see on my screen? Cube root. Yes, ma'am, I also find this. All right, very good. So 231 is the answer. ठीक है, 231 का अगर cube लें तो this number comes. ठीक है, so now let's quickly attempt. अब्दुल मजीद, आपका भी आंसर आ गया था बेटे? 231 is the answer. ठीक है, ये 231 का cube है. So last question जो है इसमें भी आपने यूं ही करना है. देखिए कितना बड़ा आंसर आ रहा है. 882 को आपने, you need to find out the value of K. And I told you the other day smallest क्यों लिखा हुआ है? Because there can be other values of K also. ठीक है, this is the smallest value.
I can divide with 2, so it will be 441. So this can be divided by 3. 3 ones are 3, 3 14, 3 fours are 12, 21, 3 sevens are 21. So 147 किससे डिवाइड करूं? 7 से. 7 twos are 14, 7 1, 3 से 3 sevens are 21, then again with 7. ठीक है, मैंने एक 3 को डिवाइड नहीं किया. So the prime factorization of 882 is, I will write down in index form. Index form का मतलब होता है power form. ठीक है, 2 की power 1, 3 की power 2 and 7 की power 2. So what would be k? I want Mohit to tell me. Mohit, k की क्या वैल्यू होगी ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? यहाँ क्यूब लिखा हुआ है ना, स्क्वायर होता तो स्क्वायर बनाते. What should be value of k so that 882 becomes perfect cube? तो 2 की कितनी पावर मिसिंग है? मैम मोहित, 2 की पावर 2. 2 पावर ना, टोटल 3 पावर होनी चाहिए. 3 की 1 पावर 1 power and 7 with 1 power. with 1 power. ठीक है, so the value of k is 3 2 2s are 4, 4 3s are 12, और अगर आप 12 into 7 करें तो ये कितना आ जाता है आपके पास? 7 2s are 14 और 84. so k की क्या वैल्यू आती है? 84. अच्छा बेटे, what if the question is कि you need to make 882k a perfect square? So We will what would be k? multiply. अगर यहाँ पर होता परफेक्ट स्क्वायर बनाए इसको, तो फिर हम क्या करते? फिर क्या मिसिंग होता? लाइक ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है ना 882 की. 882 इज बेसिकली 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 7 की आल्सो पावर 2. तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता, तो फिर k की क्या वैल्यू होती? व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट क्यूब बनाने के मैम लिए क्या पावर्स मिसिंग है? 1 1 किसकी 1 पावर? 2 1 power is 2 की 1 पावर. व्हाट अबाउट 3 एंड 7? they are मोहित आप ही direct. बताएं. दे आर ऑलरेडी इन स्क्वायर्स, सो इनकी पावर हमें चाहिए नहीं, तो फिर आंसर हमारा k का क्या होता? 2 होता. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, सो अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 882k में k की वैल्यू वुड बी 84. बट अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो देन k शुड बी जस्ट 2. ठीक है, 882 को अगर डबल करें तो आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू सी कि इज इट परफेक्ट स्क्वायर इन द क्वेश्चन आस्क्ड और इज इट परफेक्ट क्यूब. क्योंकि अभी जो हमने सारे क्वेश्चन किए ना ये परफेक्ट क्यूब के क्वेश्चन है, बट ये यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर भी है. 135 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 54k इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, सो इसमें आपने पावर 2 बनानी होगी. जैसे हम इस क्वेश्चन को एक कर लेते हैं. जैसे अगर ये क्वेश्चन होता तो बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसका मतलब आपको पावर 2 बनानी है, तो आप 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो 2 इज 27 and then it is 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. आप Yes. देखिए आपने इसको कैसे लिखना है 54. आप क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यू विल राइट डाउन इन फॉर्म ऑफ 2. ये नहीं बन सकता, इसके ग्रुप बन जाएगा, दिस विल स्टिल बी अलोन. सो 54 को आप लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर नंबर. आपने इसको स्क्वायर नंबर बनाना है तो आप द पावर शुड बी 2. ठीक है, सो आप द वैल्यू ऑफ k वुड बी, व्हाट आर द मिसिंग पावर्स? 1 power of 2 हाँ, and 1 power of 3. 3. So k would be 6. अब ये k की वैल्यू Yes. 6 है because they are asking you to find out to make it a perfect square. अगर ये perfect cube कहते तो डेफिनेटली फिर हमने क्या करना था? अगर ये perfect cube होता इसी क्वेश्चन का तो फिर हम क्या करते? फिर हम देखते क्या ये आपके पास 54 है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3. सो 3 की पावर 3 इज ऑलरेडी फाइन, तो फिर आपके पास k की वैल्यू आती 2 की पावर 2. तो आप कहते हैं k 4 होना चाहिए अगर आपने इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है. ठीक है, सो ये क्वेश्चंस आप दोनों तरह से कर सकते हैं, परफेक्ट क्यूब बनाने की भी ट्राई कर सकते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं. ठीक है बेटे, इज इट क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? मोहित, Yes, ma'am. अब्रिश की तो मुझे आवाज आ रही है, शी इज पार्टिसिपेटिंग. मोहित आपका मुझे नहीं पता चल रहा, आपको भी बात समझ आ गई बेटे? एनी क्वेश्चन? No, ma'am. ठीक है, सो ऑलराइट, सो वी हैव द सिमिलर क्वेश्चंस इन द बुक आल्सो जिसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है. ठीक है, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन 7. Question 7 is find the smallest value of k such that the LCM of k and 6 is 16 है. ये different question है, ये word problem है. अच्छा जी, ये सारे word problems. ठीक है,
अच्छा, आई कैनॉट सी एनी विथ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का HCF और LCM नहीं है, क्योंकि आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करे, आज हमने फोकस करना है नंबर्स पे. सो आई कैनॉट सी एनी क्वेश्चन वेयर देयर आर 3 नंबर्स, बिकॉज 3 नंबर्स में कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं ना. सो लेट मी सी इफ वी हैव एनी एग्जांपल और प्रैक्टिस नाउ, वरना हम खुद से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, लेट मी क्विकली सी के वी हैव फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग बोथ मेथड्स. अच्छा, both methods का क्या मतलब है? Why they are saying find HCF of 56 and 84 using both methods? So do you know what is the other method? You know, Yes. one method is using prime factorization 56 and 84. So एक और तरीका क्या है? एक तो ये तरीका है, चलो, लेकिन ये दोनों prime factorization है ना. एक और तरीका भी होता है LCF निकालने का 56 and 84. वो तरीका कौन सा होता है? Like Ma'am, there are two methods. by long division. By long division, like by dividing both numbers. वो वाला Yeah. वी कैन डू दैट ऑल्सो. तो फिर तो हमारे पास 3 मेथड हो गए. लाइक एक मेथड है हमारे पास बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एक मेथड है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन. ठीक है, सो एक और मेथड है आपके पास प्राइम फैक्टर्स की बजाय बाय फाइंडिंग द कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, सो लेट्स डू कॉमन फैक्टर्स मेथड फर्स्ट, और फिर हम लॉन्ग डिवीजन भी कर लेते हैं. कॉमन फैक्टर्स का मेथड ये होता है ना कि अगर आपने इनको लिखना है इन फॉर्म ऑफ फैक्टर्स. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल यहीं से दिखाती हूँ बुक से. जैसे ये देखें, दिस वन, can you see factors of 18? ये factor pair हम नहीं बनाते जैसे in the previous classes you have learned. 18 के factors क्या क्या हैं? 1 into 18, 2 into Yes, ma'am. 9, 3 into 6. ये इसके क्या हैं? Factors हैं. They are not the prime factors. ये वो factor pairs हैं. और 30 के factor pairs ये हैं. And then you will just list down all the factors, और फिर उसमें से आप common factors ले लेते हैं. And those common factors are your HCF. ठीक है, कैसे लिखते हैं? जैसे 56 को we can write down 1 into 56, 2 into 28, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 इंटू 14, ऑल तो ये ज्यादा मुश्किल है. 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से नहीं है, 7 इंटू 8. ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर पेयर्स. ठीक है, और 84 के फैक्टर पेयर्स क्या क्या हैं? 1 इंटू 84, 2 इंटू 42, देन 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है डिविजिबल, 3 इंटू 3 2 6 और 8 3 24, देन 4 से डिविजिबल है 24, सॉरी 21, 4 2 8 एंड 4 1 4. ठीक है, फिर आप इसके बाद 5 से नहीं है, 6 से है. 6 से क्या आएगा? 6 1 6, 7 8, 6 4 24. ठीक है, 7 से भी है, 7 इंटू 7 1 7, 7 2 14. ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर पेयर्स हैं. 7 into 12, दैट्स ऑल आई थिंक सो, है ना. 8 और 9 से नहीं है. ठीक है, Yes. तो दैट्स ऑल. अब देखिए इसमें आप देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं. ये एक और मेथड है HCF निकालने का. लाइक यू सी 1 इज देयर, 2 इज देयर, सो 1 और 2 यहाँ भी आ रहा है. Fourth देन यू कैन there, सी 3 नहीं है, 4 fourth, इज देयर, यस. और कौन है? 7 इज देयर, ये 14, 7 है. 14 14. इज देयर. ठीक है, ये 14 है आपके पास. 28 इज ऑल्सो देयर. Yes. ठीक है, सो अब देखें, दिस इज द करेक्ट वे. अब ये नहीं आपने सबको मल्टीप्लाई करना है. अब ये इसका सही, दिस इज यू नो, ऐसा नहीं कि सारे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे. अब आपने एक्चुअली कहना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 4 7, देन 14 एंड 28. ठीक है, नाउ द वर्ड कम्स HCF, which is the highest. ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं. which is the highest common factor? तो इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 28. So 28 is your answer. Are you getting the point? Now the word explains itself. HCF, Yes. highest common factor, the biggest common factor. They both having. ठीक है, so ये second method होता है. ठीक है, so but I think so prime factorization is more. अच्छा, third method which Abrish was saying, वो कौन सा method होता है? Long division. Abrish उसमें क्या करते हैं आपको याद है? किस तरह division start होती है? Long division कैसे करते हैं? किस नंबर को? जो बिगर नंबर है दैट विल कम इनसाइड एंड द स्मॉलर नंबर And कम्स आउटसाइड. outside. 56. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं. लाइक 56 1s are 56. क्या रिमाइंडर होगा? 28. 28. तो अब आप असल में ये लॉन्ग डिवीजन का पर्पस ये होता है, यू कीप ऑन डिवाइडिंग. आप डिवाइजर, आपका रिमाइंडर छोटा होता है तो देन द डिवाइजर बिकम डिवाइडेड. अब 28 2s are 56 है. तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो वट एवर इज द लास्ट डिवाइजर, दैट इज योर HCF. अच्छा, एक बहुत मजे की बात है कि आगे जाके जब आप फर्दर मैथ्स में जाएंगे ना, और हम एल्जेब्रा में HCF निकालते हैं.
अभी तो हम नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं, जब आप अलजेब्रा का एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें आपके पास ये मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम यही मेथड यूज करते हैं अलजेब्रा में एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। सो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, इसी तरह भी सक्सेसिव डिवीजन करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। सो हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ वी नो? Actually, three methods. Abdul Moeed, are these three methods clear? Like although we are following prime Yes. factorization method, ठीक है, लेकिन आपको ये दो मेथड भी पता होने चाहिए कि we can find HCF using long division and we can find HCF using the factor pair method. ठीक है, write down the factors of both numbers or three numbers and find out the biggest common factor. ये इसी को find out करने के methods हैं, Ma'am, ठीक है। Abdul has gone. Oh, I think so. He's having some problem with the net. Let me see अगर मैंने उसको admit करना। जी अब्दुल मोईद बेटे, when you were like when you left, were you able to listen to this discussion long division or common factors? Yes, ma'am. So बेटे, were you able to listen to these two methods जो हमने डिस्कस किए हैं? एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। मैंने उनकी समझ नहीं रहा, मतलब आप एक पास आए, एक बार उनको कोई एग्जांपल दे दे, वर्क कर दे। कोई और एग्जांपल दे दूं? एक तो ये एग्जांपल हमने किए ना, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। इन्हीं में से जो मैंने आपको होम टास्क दिया है या ये जो आपकी बुक के क्वेश्चन है, इन्हीं में से हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से जो आपको इस एक्सरसाइज के बिना कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए ना, इनमें से एक एग्जांपल कर लेते हैं। वी कैन सी क्या हाउ कैन वी फाइंड आउट। लेट्स से बहुत बड़े नंबर भी नहीं लेते ना, 45 एंड 60, ठीक है। सो अगर हम 45 एंड 60 का एचसीएफ लें विद द टू मेथड्स वी हैव लर्न, 45 एंड 60, ठीक है। सो पहले हम करते हैं उसी मेथड से। वही तब आपने ध्यान करना है बेटे। सो लेट्स यूज द फैक्टर पेयर मेथड, ठीक है। एक मेथड है हमारे पास फैक्टर पेयर। जी बेटे। मैम 45 can be done with 3. पहले like 1 and 45, ठीक है। So then 3 and 15, Yes. है ना, and then 5 and 9, 5 and 9. but that's all. 9. Yes. That's right. And अब 60 के with फैक्टर पेयर्स 1 and 1 6, and 60. 2 and 2 and 30. 30, 3 and 3 and 20. 4 and 15. 4 and 15, 5 5 and 12. 5 and 12, 6 and 10, 10. ठीक है। अब आपने देखना होता है कि इन सब में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। सो कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3, 5, 1 3 5, और कौन सा कॉमन है? 15. 15 also, ठीक है। So the common factors are 1 3 5 and 15. Now what is HCF? Which is the highest common factor? Highest common factor is 15, ठीक है। So HCF of 45 and 60 is 15, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। मोहित अभी ध्यान बिल्कुल इधर ही होना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? You will keep 60 inside and 45 outside. Very right. And we will keep dividing until the remainder is not 0. So long division hota hai, you put 60 inside and you divide it with 45. So 45 ones are 45. Then the remainder is 15. So now this 45 will come inside. जब remainder छोटा रह जाता है ना, तो हम number को अंदर ले आते हैं। Now 15 into 3 is 45. So remainder is 0. जब remainder 0 आ जाता है ना, तो last divisor जो होता है that is your HCF. ये long division method है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन ये नंबर्स छोटे हमने लिए हैं ना, दैट्स व्हाई सेकंड स्टेप पे आंसर आ रहा है। जब नंबर्स बड़े होते हैं या ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिनका एचसीएफ बड़ा है, तो देन यू नीड टू डिवाइड 3-4 टाइम्स मे बी टू गेट द जीरो रिमाइंडर, ठीक है बेटे। सो इज इट क्लियर नाउ मोहित? Yes, sir. Yes. राइट, वेरी गुड अबरीश। व्हाट अबाउट मोहित, ये बात समझ आ रही है बेटे? 3 मेथड है एचसीएफ निकालने के, ठीक है। सो यू शुड नो दिस। अच्छा, नाउ आई वाज टेकिंग यू बैक ताकि हम देख लें अगर हमारे पास कोई के मेथड का क्वेश्चन और है, सो वी कैन डू दैट। ये क्वेश्चंस है। You can see the numbers, second question जिसमें the numbers 240 and 252 written as the product of their prime factors are this. We need to find out, ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे मैंने कल आपको होमवर्क में भी दिया था, ठीक है। So I'm going to write down this question, ये आपके थोड़ी सी confusion को भी
दूर कर देगा. This would be the last question. I'm clear with this. You are clear already? So इसको यहीं Yes, पे कर लें अगर आप कहते हैं. देखिए वो आपसे फर्स्ट yes, क्वेश्चन क्या करें. So 240 के ये मल्टीपल्स हैं. 240 के ये like 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 raised to power 4. I'm zooming in. ठीक है. So 2 power 4 3 into 5. 240 की 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 raised to power 4 into 3 into 5. So they're asking you in the first part, K, what should be the value of K such that n इन्होंने कहा है is a multiple of 252. ये और ये फैक्टर और मल्टीपल है, ये नहीं छोड़ ही दे. बस आई थिंक सो के वाले क्वेश्चंस वही हैं वहीं पे. अच्छा, लेट्स चेंज दिस क्वेश्चन अ बिट. लेट्स से 240k is a perfect k की जगह पे they can use any other variable also, is a perfect square. What would be the value of k? Mohit, I want your answer. I know Abrish is clear. What should be value of k so that 240k is a perfect square? Yes. So we will do prime. The prime factorization is already done. Prime factorization they have already done. We will 2 की power like 4 2 is it and fine? 2 into 2 with power 2 separately. That's right. So we can write it down like this: 2 square and 2. That's what Abrish is saying. 3 की power 1 and 5 की power 1. So Mohit, K what would should be be the 3 with power 3 की power 1 and 5 with power 1. So the answer K will be should be 15. very right. Answer will Acha, be 15. now what if they are asking you what should be the value of k so that 24k is a perfect cube? अब क्या होगा? Perfect cube होगा. So we will write down it's like 2 की power 3, 2 की power 2 की 3. power 1 है ना. 4 power को हमने split कर दिया. Then 3 की power 1 and 5 की power 1. So now what would be the value of k? What are the missing powers? With up 2 power with 2. 2, 3 power 3 with की 2 power and 5 power with 2, 2. 5 power भी 2, ताकि ये सारी क्यूब्स बन जाए. ठीक है. So now you can say it is 4 into 9 into 25. So you can just multiply it. And पावर दे दी है. sorry, हमने 5 पावर दी है. 5 की क्या? हमने 5 और 3 को कैसे पावर दी है? बेटे जब आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है ना, तो आपको सारे नंबर्स की 2 पावर चाहिए. अब देखो जैसे 240 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. सो ये 2 की पावर्स तो दे आर फाइन. 3 की एक पावर मिसिंग है बिकॉज हमें 2 पावर्स चाहिए. सो हम कहते हैं k की वैल्यू क्या है? 3 और 5 की एक पावर, ताकि ये 2 पावर्स हो जाए. अब यहाँ पर हमने परफेक्ट क्यूब बनाना है. क्यूब का मतलब होता है पावर 3. ठीक है, सबकी 3 पावर 900. ठीक है, सबकी 3 पावर्स चाहिए. सो 3 पावर्स में हम देखते हैं दिस इज फाइन क्योंकि इसके ऑलरेडी 3 पावर है. दिस 2 3 एंड 5 दे आर हैविंग 1 पावर. इसका मतलब है वी नीड 2 पावर्स. तो हमने 2 की भी 2 पावर दी, 3 की भी 2 पावर दी और 5 की 2. अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें बिकॉज ये 240k है ना, तो आप देखिए हर एक की 3 पावर हो जाएगी एंड इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलमोस्ट फ्री मार्क्स इन द पेपर. ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा साधा सा क्वेश्चन है. So that's all for today. ठीक है, so tomorrow we will do word problems.